Hey, hello guys, प्रफुल कुलकर्णी from Alpha Leo Capital. Welcome back. एंड काफी दिनों के बाद मैं कुछ लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ या कुछ मार्केट एनालिसिस वीडियो टाइप बना रहा हूँ बिकॉज फॉर द लास्ट 1 मंथ और इवन मोर देन 1 मंथ कोई मार्केट एनालिसिस वीडियो होने दो या लर्निंग वीडियो होने दो नहीं बनाया था. एंड आई वोंट गिव द रीजन दैट आई वाज बिजी और समथिंग लाइक दैट. आई वाज जस्ट बीइंग लेजी. ठीक है, दैट्स द ट्रुथ. एंड बट आई हैव बीन कंसिस्टेंट इन अपलोडिंग माय लाइव ट्रेडिंग वीडियोस. हर रोज जो भी मैंने ट्रेड्स लिया हूँ, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, and whatever might be the reason for that loss, it might be slippages, it might be my stupid mistakes, everything. I've been very transparent. And अगर कोई दिन अगर मैं ट्रेड नहीं लिया because of fear or because of me not feeling comfortable to trade in that particular market scenario, सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है. And if you have not checked it out, I think you should go and check it out. And for all the people like who have been following me for quite some time, you know that I'm pretty much a non-directional trader and I mostly play with straddles and strangles. ठीक है. So for the guys like who keep watching my videos, most of the जगह पे मैं explain किया हूँ why I did the adjustments and when I did the adjustments. But even then, the common question that I get is what are the parameters that I look while doing an adjustment to my straddle or a strangle position. ठीक है. To answer it in a simplest way, there is no one parameter. I have to consider multiple parameters. मैं open interest देखता हूँ, मैं price action देखता हूँ, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता हूँ, मैं स्ट्रेंथ देखता हूँ मार्केट की, एंड ऑल्सो आई लुक एट द प्रीमियम बिहेवियर एंड अपॉन दैट आई लुक एट द मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी का स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में बैठा हूँ, देन आई विल बी लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, रिलायंस, एचडीएफसी एंड टाटा मोटर्स. ये 5 चीजों का मैं मूवमेंट देखता हूँ एंड कंबाइनिंग ऑल ऑफ दैट देन आई डिसाइड ऑन व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइल आई वांट. मतलब मेरा रिस्क कर्व है, स्मूथ रहना है या कुछ में ज्यादा रिस्क लेना पसंद करूंगा. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आई मेक द एडजस्टमेंट्स. एंड अनदर क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू एड्रेस इज समटाइम्स आई एडजस्ट माय पोजीशन एंड समटाइम्स आई कंप्लीटली कम आउट ऑफ माय पोजीशन. दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करो तो इफ मार्केट इज ब्रेकिंग सम सपोर्ट, लेट्स से, ठीक है, इवन इन सपोर्ट यू कैन क्लासिफाई द सपोर्ट इन 3 or 4 categories. One is a minor support, another is a major support, another is a psychological support like round numbers like 15,000, 14,000, 13,500, something like that, and another is the previous day's high or low, and finally you get like day swings, okay, which don't matter much. Okay, so whenever a support is breached or whenever a resistance is breached, I tend to think in terms of probabilities of what the market can, what might be the next support for the market. Suppose एक major support breach होता है, then I won't be in a position to tell next market का support कहाँ आ सकता है, because if the market is breaching the support with so much of strength, then it's better to come out of the position than to keep adjusting it and losing a lot of points to slippages and delta movements, right? So it gets a bit complicated. I won't say complicated. Of course, it becomes easy once you start doing it for yourself. And yes, if you are someone new, you might get overwhelmed by the amount of data you need to look to make an adjustment. तो मैंने क्या किया है? तो I came up with an observation. जो ये मेरी observation है, which is very simple. तो this is for straddle or strangle. दोनों जगह पे ये use कर सकते हैं. But I suggest that you use this strategy what I'm going to be telling you. I'll be taking you to the screen and I'll be explaining you this strategy. तो ये strategy को आप straddle पे डिप्लॉय करो. तो इस एडजस्टमेंट का खासियत ये है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट्स एवर, क्योंकि आपको ना प्राइस एक्शन देखना है, आपको ना ओपन इंटरेस्ट देखना है, आपको ना कांस्टेंट एलिमेंट्स की मूवमेंट देखना है. ऑल यू हैव टू डू इज ऑब्जर्व जस्ट 2 थिंग्स. वन इज अ सीई मूवमेंट एंड अनदर इज पीई मूवमेंट. स्ट्रैडल ट्रायंगल पे कोई भी हो, एक सीई शॉर्ट रहता है, एक पीई शॉर्ट रहता है. तो इन दो प्राइजेस को जस्ट देख के आप डिप्लॉय करो, उससे बाहर आ जाओ. इट्स नॉट एडजस्टमेंट, इट्स बेसिकली when to enter a straddle and when to exit a straddle, and उसके बीच में आपको जो थीटा डीके मिलने वाला है, तो you will be collecting that theta decay. So if someone who's starting with straddles or strangles for the first time, or if you're a beginner, so I think this way of trading will take out a lot of stress from you. तो उसके ऊपर आप डेवलप कर सकते हैं. So this is one of the simplest ways to play straddles or strangles. Of course you can use this both for straddles as well as strangles, but मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूज दिस स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रैडल्स. Without wasting much time, I'll take you to the screen and I'm gonna explain what this strategy is. वीडियो को एंड तक देखो because I'll be telling the do's and the don'ts and some important points at the end of the video. चलो guys देखते हैं.
दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रैडल एडजस्टमेंट दैट आई हैव कम अक्रॉस। ठीक है, तो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है एंड या मोस्टली जब स्ट्रैडल एडजस्टमेंट्स करते हैं तो आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट स्ट्रैडल्स आर। स्ट्रैडल्स में क्या करता है, एक सी शॉर्ट करते हैं, एक पी शॉर्ट करते हैं एंड उसका पे ऑफ ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। मार्केट अगर सेंटर में रहता है तो यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड अगर ये रेंज को पार करता है देन यू विल स्टार्ट सीइंग द लॉस। बट सिंस वी आर डूइंग एक्टिव डायनामिक एडजस्टमेंट्स, इसका जो सीन है ये अपना सीन में है ही नहीं। इसका जो लॉस का जो प्रोबेबिलिटी है हमारा सीन में है ही नहीं, क्योंकि वील बी क्लोजिंग इट द सेम डे एंड ऑल्सो विल बी क्लोजिंग इट मच बिफोर वील स्टार्ट टेकिंग बिग लॉसेस। ठीक है, तो नाउ यूजुअली स्ट्रैडल एडजस्टमेंट्स कैसे रहता है, स्ट्रैडल एडजस्टमेंट्स में दो टाइप के स्ट्रैडल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। लाइक आई कैन एक्चुअली कैन डू इवन मोर ऑफ द एडजस्टमेंट्स, बट मेनली स्ट्रैडल एडजस्टमेंट्स या ट्रायंगल एडजस्टमेंट्स, कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के जो एडजस्टमेंट है दो टाइप के कर सकते हैं। वन इज रेंज बेस्ड एडजस्टमेंट एंड सेकंड इज प्रीमियम बेस्ड एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट थिंग, रेंज बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होता है। मान लो आप एक कॉल एंड पुट शॉर्ट किया है, आप एक स्ट्रैडल पे बैठे हैं, लेट्स से 14,000 पे मार्केट है एंड 14,000 के कॉल एंड पुट आप शॉर्ट किए हैं। तो आपने डिसाइड किया है मार्केट अगर 80 पॉइंट्स ऊपर गया या 80 पॉइंट्स नीचे गया तो मैं स्ट्रैडल से बाहर आऊंगा। एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज बिटवीन दिस रेंज, मतलब 14,080 एंड 13,920, इस रेंज में जब तक मार्केट खेलता रहेगा तब तक मैं स्ट्रैडल को होल्ड करूंगा और उसका डीके में खाता रहूंगा। द मोमेंट दिस ऊपर का जो 80 पॉइंट है, ये ऊपर का जो 80 पॉइंट रेंज एंड नीचे का जो 80 पॉइंट रेंज जैसे ब्रीच कर देता है, तो अगर ऊपर भी ब्रीच किया तो आई विल क्लोज माई स्ट्रैडल पोजीशन एंड अगर ऐसे आके नीचे ब्रीच किया तब भी मैं स्ट्रैडल को क्लोज कर दूंगा बाय टेकिंग व्हाटएवर द प्रॉफिट और व्हाटएवर द लॉस। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा वेदर टू एडजस्ट दिस और वेदर टू कंप्लीटली कम आउट ऑफ द पोजीशन, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो इसका रेंज कैसे निकालना है, कितने पॉइंट का रेंज रहना है, दैट आई विल बी डूइंग अनदर वीडियो, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट, बट दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, नाउ इसका प्रॉब्लम्स क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, रेंज बेस्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हमेशा काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? बिकॉज हर एक दिन प्रीमियम्स बदलता रहता है, राइट। कोई दिन आपको प्रीमियम मिलता है 120 रुपीज 120 रुपीज, कोई दिन आपको मिलता है 150 मिलता है, टोटल 300 रुपीज प्रीमियम मिलता है। बट ऑन एक्सपायरी डेज आपको मिलता है 50 रुपीज, 50 रुपए 50 रुपीज 50 रुपीज का प्रीमियम जो मिलता है, उससे आपका रेंज इतना छोटा बन जाएगा, एक 5 मिनट का कैंडल भी आपके रेंज से बाहर चला जाएगा। So you'll be mostly shelling out a lot on charges and adjustments. So this is not viable. And एक और सीन में रेंज बेस्ड एडजस्टमेंट काम नहीं करता, वो कब? इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग आईवी सिनेरियो। मतलब मार्केट रेंज के अंदर ही है, बट आईवी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मतलब कॉल का प्रीमियम्स भी बढ़ रहा है, पुट का प्रीमियम्स भी बढ़ रहा है, बट मार्केट रेंज में बैठा हुआ है। लाइक सपोज मान लो कि नेक्स्ट 2 दिन के बाद बजट है, या कुछ मोदी जी की स्पीच है, या कुछ एफएम के स्पीच है, या कुछ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ड्यूरिंग सच केसेस द प्रीमियम्स विल बी स्पाइकिंग अप, द मार्केट विल बी मेकिंग अ रेंज। उस टाइम पे भी आपको क्या होता है, आप तो देख रहेंगे मार्केट तो रेंज में है, आप बैठे रहते हैं, बट आपका एमटीएम क्या होता रहता है, आपका एमटीएम धीरे धीरे नेगेटिव होते बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज द ऑप्शन प्रीमियम्स आर स्पाइकिंग एंड दिस रेंज बेस्ड एडजस्टमेंट विल नॉट सपोर्ट द राइजिंग आईवी एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ तो दूसरा स्टाइल ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, प्रीमियम बेस्ड एडजस्टमेंट। मतलब कैसा है, मान लो आपका प्रीमियम है, मान लो आप 150 रुपीज कॉल पे प्रीमियम कलेक्ट किए हैं एंड 150 रुपीज पुट पे प्रीमियम कलेक्ट किए, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का सपोज 150 का 50% क्या है, 75 रुपीज, दैट इज 225 रुपीज इस पे स्टॉप लॉस लगाओगे एंड 225 रुपीज इस पे स्टॉप लॉस लगाओगे। एंड उसके बाद क्या है, अगर कोई भी साइड एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो छोड़ देने का, बिकॉज दिस विल, मान लो कि ये कॉल का प्रीमियम 225 रुपीज हिट होकर स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन दिस वुड हैव डीकेड लाइक 75-80 रुपीज। एंड अगर मार्केट सेम डायरेक्शन पे चलता रहा तो देन दिस विल फर्दर डीके, तो तब प्रॉफिट हो जाएगा। बट इसका एक, हाँ, अगर इसके ऊपर आपको, अगर इफ यू वांट लाइक मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस, आई हैव ऑलरेडी मेड अ 3-part वीडियो सीरीज ऑल अबाउट स्ट्रैडल्स करके, तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन वॉच इट। ठीक है, तो आई वोंट बी होवरिंग मच ऑन दैट बिकॉज उसको ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, आजकल का जो वॉलेटिलिटी है, मार्केट क्या करता है, पहले यहां पे रहता है तो ऊपर चला जाता है, कॉल का स्टॉप लॉस ले लेता है एंड देन इट रिवर्सेस एंड टेक्स पुट का स्टॉप लॉस आल्सो। बेसिकली you'll be giving double stop loss on each day।
जब ये डबल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो लॉस इज सो हाई, द ड्रॉडाउन इज सो हाई दैट यू विल टेक अनदर 3 or 4 days टू जस्ट टू रिकवर दैट लॉस. तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, तो यू विल बी लुकिंग एट योर P&L स्टेटमेंट. आप इधर बेरली प्रॉफिटेबल रहता है या ब्रेक इवन रहता है आफ्टर चार्जेस. तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोना वर्क ऑन ऑल द टाइम्स. तो अभी मैंने क्या किया, लाइक वी विल नाउ बी गोइंग टू द आर एडजस्टमेंट. हमारा जो स्ट्रेटेजी है उस पे जाएंगे, विच इज कॉल्ड द स्मार्ट एडजस्टमेंट. ये स्मार्ट क्यों है? ये स्मार्ट इसलिए है, यहां पे भी हम इंडिविजुअल लेग्स पे 50% स्टॉप लॉस लगाते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल लेग्स यहां पे भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर सम स्पेशल केस. मान लो कि मार्केट एक ही 2 मिनट में 100 पॉइंट गिर गया, 150 पॉइंट गिर गया सडनली, तो कोई भी स्ट्रैटेजी होने दो, कोई भी सिस्टम होने दो, कोई भी ट्रेडर होने दो, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस देके ही निकलना पड़ता है. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी नहीं, दुनिया का कोई स्ट्रैटेजी ऐसे सिनेरियो में काम नहीं करता. बट सिंस यू हैव केप्ट द स्टॉप लॉस, आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप निकल जाओगे विदाउट टेकिंग मच डैमेज. दैट इज फॉर दैट. बट इन 99% ऑफ द केसेस वी वोंट लेट दिस स्टॉप लॉस टू बी हिट. ठीक है, तो अभी मैं रूल समझा देता हूं क्या करना है. द फर्स्ट इज 920 पे स्ट्रैटेजी को लेना है एंड यू हैव टू सेल एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट. 1 लॉट एट द मनी कॉल सेल करना है एंड 1 लॉट एट द मनी पुट सेल करना है. 920 से पहले मत करो एंड एग्जीक्यूट यूजिंग बास्केट ऑर्डर. दोनों कॉल एंड पुट दोनों पे डालो बास्केट में और एक साथ बास्केट पे एग्जिट करो, सो दैट यू वोंट गेट बैड फिल्स एंड यू वोंट गेट स्लिपेजेस. तो देन दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, द प्रीमियम शुड बी अबव 90. मतलब कॉल के प्रीमियम भी 90 से ऊपर रहना चाहिए एंड पुट के प्रीमियम भी 90 से ऊपर रहना चाहिए. सपोज मान लो यू आर सिटिंग ऑन अ थर्सडे, अब थर्सडे पे है एंड प्रीमियम मान लो कि 60 रुपीज है, देन ट्रेड द नेक्स्ट वीक्स ऑप्शन. नेक्स्ट वीक्स ऑप्शन में प्रीमियम ज्यादा रहेंगे, उस ऑप्शन को आप ट्रेड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर बोथ प्रीमियम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट 100 रुपीज होना चाहिए, ऐसे नहीं है. 198, 104 इतना तक जा सकता है. बट ऐसे मत करो कि एक प्रीमियम 80 रुपीज है, दूसरा प्रीमियम 95 या 100 रुपीज है. इतना मत करो, बिकॉज दैट्स नॉट दैट वोंट हेल्प यू. ऑलराइट, एंड जैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, पहले हर एक लेग का 50% प्रीमियम्स को स्टॉप लॉस पे लगा दो. ठीक है, डोंट वरी, ASLs आपको हिट नहीं होने वाला है. दिस इज जस्ट फॉर इन केस सम ड्रास्टिक मूव, मतलब आपको आपकी कंट्रोल से भी बाहर अगर मूव आ गया तो इट इज फॉर दैट. ठीक है, दिस इज लाइक द फाइनल फ्रंटियर. ऑलराइट, तो उसके बाद बास्केट ऑर्डर पे मैंने बोल दिया एंटर यूजिंग बास्केट ऑर्डर्स. अभी एग्जिट कंडीशन क्या है? ठीक है, अभी एग्जिट कंडीशन में समझा दूंगा. अभी एग्जिट कंडीशन क्या है, मान लो सी के प्रीमियम 100 रुपीज है एंड पी के प्रीमियम भी 100 रुपीज है. ऑलराइट, तो अभी मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, करेक्ट. तो मान लो प्रीमियम की प्रीमियम 110 हो गया एंड इसका हो गया 90 रुपीज, करेक्ट. क्योंकि जस्ट बिकॉज दीज प्रीमियम्स हैव 100 and 100 रुपीज इन देम, तो अगर एक 10 रुपए बढ़ता है तो दूसरा 10 रुपए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये निकल जाता है इससे. देन मान लो 120 हो गया तो ये बनेगा 80. ठीक है, ये मान लो 130 बन गया तो अब ये बनेगा 65 बनेगा ये, करेक्ट. इस पॉइंट पे क्या हुआ देखिए, पुट का प्रीमियम जो है कॉल का प्रीमियम का आधा है, या कॉल का प्रीमियम जो है पुट का प्रीमियम का डबल है. दैट इज व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्ट्रैडल. यहां पे आप कितने पॉइंट्स कमाए, तो आपने सेल किए थे 100 + 100 200 रुपीज पे, यहां पे आप बाई कर रहे हैं 130 + 65 दैट इज 195 रुपीज पे. दैट यू कलेक्टेड 5 पॉइंट्स प्रीमियम ऑन दिस स्ट्रैडल एंड यू कम आउट एट दिस पॉइंट. क्योंकि रीजन क्या है, सी यूजुअली स्ट्रैडल, व्हाई डू वी गो फॉर स्ट्रैडल, वी हैव गुड प्रीमियम्स टू सस्टेन द मोमेंट. बट जब ये 130 बन जाता है, जब ये 65 बन जाता है, दिस विल एक्सेलरेट मच फास्टर, क्योंकि इसका डेल्टा जो है 0.7 0.8 बन जाता है एंड इसका जो डेल्टा है 0.3 बन जाता है. तो ये ज्यादा डीके नहीं होने वाला आफ्टर सम पॉइंट एंड दिस विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. तब वो आपको कुशनिंग नहीं दे सकता है. दैट इज वाई 2 is the sweet spot. मतलब if one premium becomes 2 times the other premium, that is when the straddle becomes imbalanced and that's when you exit out of that straddle. तो मैंने वही चीज यहाँ पे बताया. Exit condition is when one premium becomes double the other.
जरूरी नहीं है कि हर बार ये 5 रुपए 10 रुपए मतलब आपको देके जाएगा, बट 90% ऑफ द टाइम डीके, सिंस डीके इज देयर, गुड डीके इज देयर, ये हमेशा मिल जाएगा। बट कभी कभी ऐसे भी होता है ये 65 नहीं होता है, मान लो कि ये 70 पे रह जाता है, या मान लो ये 75 पे चला गया, यहाँ पे आपको 5 पॉइंट का आपको लॉस देके निकलना पड़ता है। ये 75 जब रहता है देन यू कैन स्टिल वेट, क्योंकि ये 75 जो है इट इज नॉट स्टिल नॉट डबल, राइट? तो तब क्या होगा, ये 140 पे चला गया एंड ये बन गया 70 पे, ठीक है। नाउ दिस प्रीमियम इज हाफ ऑफ दिस, और दिस 140 इज डबल द 70, दैट इज व्हेन यू एग्जिट आउट ऑफ द स्ट्रैडल। मान लो अगर मार्केट काफी साइडवेज रहा एंड प्रीमियम्स मतलब ऐसी सिचुएशन आया ही नहीं, मतलब एक प्रीमियम दूसरे प्रीमियम के डबल हुआ ही नहीं, तब क्या करोगे, यू विल एग्जिट इट एट 320 तक आप वेट करोगे, 320 को आप ऑटोमेटिकली एग्जिट करोगे। सो दिस इज द रूल, ठीक है। तो आई हैव डन अ बिट ऑफ बैक टेस्ट, मतलब मैंने इतना एक्सटेंसिव बैक टेस्ट नहीं किया है, एंड इट वर्क्स 90 to 95% ऑफ द टाइम, इतना मैं कह सकता हूं। तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज ओन फॉरवर्ड टेस्ट और बैक टेस्ट, यू आर वेलकम एंड यू कैन डू इट। बट अगर इफ यू आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, डू इट ऑन निफ्टी फर्स्ट, नॉट ऑन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूव्स काफी वायलेंट रहता है। तो क्या हो जाता है, द मूव्स आर सो वायलेंट, तो ये जो डबल होके ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स, आप देखते देखते 2.5 टाइम्स हो जाता है। ये 70 140 जो रहता है 1:2 का रहता है, तो 1:2.5 इमीडिएटली हो जाता है, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा एग्जिट करने के लिए। देन द होल पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम इज नेगेटेड। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, एग्जीक्यूट दिस इन एनी ऑफ द स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि निफ्टी। तो निफ्टी में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिन निफ्टी में भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, वंस द लिक्विडिटी स्टार्ट्स पिकिंग अप इन फिन निफ्टी। इफ यू फील इट्स गुड, यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी, एंड आगे भी मतलब कुछ ना कुछ अगर स्ट्रेटेजी मिल जाता है तो आई विल कीप पोस्टिंग गाइस। तो मिलता है कल थर्सडे पे, एक्सपायरी ट्रेडिंग है, तो आई विल सी यू गाइस ऑन द एक्सपायरी लाइव एक्सपायरी ट्रेडिंग वीडियो, ठीक है, बाय बाय।